Good afternoon, students. Today we will concluding our first lesson, French Revolution. But before that, in your book, source is given, and today we will learn about these sources, and then our lesson is complete. Accounts of lived experiences in the old regime. George Danton, who later became active in revolutionary politics, wrote to a friend in 1793, looking back upon the time when he had just completed his studies. I was educated in the residential college of places. There I was in the company of important men. Once my studies ended, I was left with nothing. I started looking for a post. It was impossible to find one at the law courts in Paris. The choice of a career in the army was not open to me, as I was not a noble by birth, nor did I have a patron. I have a patron. The church too could not offer me a refuge. I could not buy an office, as I did not possess a sou. My old friends turned their backs to me. The system had provided us with an education without, however, offering a field where our talents could be utilized. Second, an Englishman, Arthur Young, traveled through France during the years from 1787 to 1789 and wrote detailed descriptions of his journeys. He often commented on what he saw. He who decides to be served and waited upon by slaves, ill-treated slaves at that, must be fully aware that by doing so he is placing his property and his life in a situation which is very different from that he would be in. Had he chosen the services of free and well-treated men, and he who chooses to dine to the accompaniment of his victims' groans should not complain if during a riot his daughter gets kidnapped or his son's throat is slit. प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत। बेटा अभी तक हमारा लेसन तो कंप्लीट हो गया है, पर आपकी किताब में जो स्रोत दिए हुए हैं ना, उनको पढ़ना भी ज़रूरी है ताकि आपको जो ये अध्याय है वो और आसानी से उसके बारे में जानकारी मिले। प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डाल्टन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा, मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था। वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं न तो जन्मजात कुलीन था और न ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू का मतलब होता है यहाँ पे फ्रांसीसी पैसा, एक तक नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा को इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज़ ने सन
सन 1787 से सन 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उसकी यह टिप्पणी दिलचस्प है। देखते हैं हम। सेवा टहल में लगे अपने गुलाम, खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होगी जिसमें उसने मुफ्त लोगों की सेवाएं ली होती और उनसे बेहतर बर्ताव करता। जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं, उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। अगला, द रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट जीन पॉल मरत commented in his newspaper, The Friend of the People, on the constitution drafted by the National Assembly. The task of representing the people has been given to the rich. The lot of the poor and oppressed will never be improved by peaceful means alone. Here we have absolute proof of how wealth influences the law. Yet laws will last only as long as the people agree to obey them. And when they have managed to cast off the yoke of aristocrats, they will do the same to the other owners of wealth. क्रांतिकारी पत्रकार जीन पॉल मराट ने अपने समाचार पत्र में टिप्पणी की, लोगों का मित्र द्वारा तैयार किए गए संविधान पर नेशनल असेंबली। लोगों का प्रतिनिधित्व करने का काम अमीरों को दिया गया है। गरीबों और उत्पीड़ितों की स्थिति अकेले शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं सुधरेगी। यहाँ हमारे पास इस बात का पूर्ण प्रमाण है कि धन कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी कानून तभी तक चलेगा जब तक लोग उनका पालन करने के लिए सहमत होंगे, और जब वे कुलीनों के जुए से छुटकारा पाने में कामयाब हो जाते हैं तो वे धन के अन्य मालिकों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। What is liberty? Two conflicting views. The revolutionary journalist Camille Desmoulins wrote the following in 1793. He was executed shortly after during the Reign of Terror. Some people believe that liberty is like a child which needs to go through a phase of being disciplined before it attains maturity. Quite the opposite. Liberty is happiness, reason, equality, justice. It is the declaration of rights. You would like to finish off all your enemies by guillotining them. Has anyone heard of something more senseless? Would it be possible to bring a single person to the scaffold without making 10 more enemies among his relations and friends? On 7 February 1794, Robespierre made a speech at the convention, which was then carried by the newspaper Le Monde Universel. Here is an extract from it. To establish and consolidate democracy, to achieve the peaceful rule of constitutional laws, we must first finish the war of liberty against tyranny. We must annihilate the enemies of an republic at home and abroad, or else we shall perish. In time of revolution, a democratic government may rely on terror. Terror is nothing but justice, swift, severe, and
inflexible and is used to meet the most urgent needs of the fatherland. To curb the enemies of liberty through terror is the right of the founder of the republic. स्वतंत्रता क्या है? दो परस्पर विरोधी विचार। क्रांतिकारी पत्रकार केमिली डेसमोलिन्स ने 1793 में निम्नलिखित लिखा था। आतंक के शासन के दौरान उन्हें शीघ्र ही मार दिया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक बच्चे की तरह है जिसे परिपक्व होने से पहले अनुपस्थित होने के चरण से गुजरना पड़ता है। काफ़ी विपरीत, स्वतंत्रता खुशी, कारण, समानता, न्याय है। यह अधिकारों की घोषणा है। आप अपने सभी दुश्मनों को लोटिन करके ख़त्म करना चाहेंगे। क्या किसी ने कुछ और बेहुदा के बारे में सुना है? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके संबंधियों और मित्रों के बीच 10 और शत्रु बनाए बिना मचान पर लाना संभव होगा? 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर ने कन्वेंशन में एक भाषण दिया जिसे तब समाचार पत्र ले मॉन्ट्यूर ने प्रकाशित किया था। सार्वभौमिक, यहाँ इसका एक उदाहरण है, लोकतंत्र की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए संवैधानिक कानूनों के शांतिपूर्ण शासन को प्राप्त करने के लिए हमें पहले स्वतंत्रता संग्राम को समाप्त करना होगा। अत्याचार के खिलाफ हमें देश और विदेश में गणतंत्र के शत्रुओं का सफाया करना होगा, नहीं तो हम नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के समय एक लोकतांत्रिक सरकार आतंक पर भरोसा कर सकती है। आतंक कुछ और नहीं बल्कि न्याय है, तेज, गंभीर और अनम्य, और पितृभूमि की सबसे ज़रूरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। अंकुश रखना आतंकवाद के माध्यम से लिबर्टी के दुश्मन गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। द लाइफ ऑफ अ रिवोल्यूशनरी वुमन, ओलिम्पी डी गोजेस. Olympie de Gauges was one of the most important of the politically active women in revolutionary France. She protested against the Constitution and the Declaration of Rights of Man and Citizen, as they excluded women from basic rights that each human being was entitled to. So, in 1791, she wrote a Declaration of Rights of Women and Citizen, which she addressed to the Queen and the members of the National Assembly, demanding that they act upon it. In 1793, Olympie de Gauges criticized the Jacobin government for forcibly closing down women's clubs. She was tried by the National Convention, which charged her with treason. Soon after this, she was executed. बेटा यहाँ पे ट्रेजन का मतलब होता है देशद्रोह। एक क्रांतिकारी महिला का जीवन, ओलिम्पे डी गोगेस. ओलिम्पी डी गोगेस क्रांतिकारी फ्रांस में राजनीतिक रूप से सक्रिय शगुन में सबसे महत्वपूर्ण में से एक थी। उन्होंने संविधान और मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा का विरोध किया, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को उन बुनियादी अधिकारों से बाहर रखा जिनका प्रत्येक मनुष्य हकदार था। इसलिए 1791 में उन्होंने महिला और नागरिक अधिकारों की एक घोषणा लिखी, जिसे उन्होंने रानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों को संबोधित करते हुए मांग की कि वे इस पर कार्रवाई करें। 1793 में ओलिम्पे डी गोगेस ने जैकोबिन सरकार की आलोचना की। महिला क्लबों को जबरन बंद करने के लिए उस पर राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा मुकदमा चलाया गया।
जिसने उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया। इसके तुरंत बाद उसे मार डाला गया। बेटा अभी तक हमने जितने भी आपके स्रोत थे ना उसको पढ़ा और उसके बारे में पढ़ा, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपकी किताब में दिया हुआ है, पर मैंने दोबारा इसलिए इसको पढ़ा ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि फ्रांस में उस वक्त क्या क्या हुआ था और लोगों के उसके प्रति क्या विचार थे। यहाँ पे हमारा ये जो लेसन है वो कंप्लीट हो रहा है। और आपके इसमें देखो किताब में एक्टिविटी दी हुई है, हिंदी मीडियम में क्रियाकलाप, तो वो आपको करके देखनी है कि वो आपको जम रही है या नहीं। अगर दिक्कत आएगी तो मैं हेल्प करूँगी, पर एक्टिविटी आपको करनी है। आ रही है बात समझ में? और अभी मैं आप लोगों को इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है और इस लेसन के जो नोट्स है वो भी भेज रही हूँ, ताकि पहला हिस्ट्री का लेसन आपके पास एकदम पूरी तरह से तैयार हो। और इसमें अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे बता सकते हो। बेटे थोड़े से ये सोर्सेस बचे थे वो भी पढ़ देती हूँ। Some of the basic rights set forth in Olympe de Gouges Declaration. First, woman is born free and remains equal to man in rights. The goal of all political associations is the preservation of the natural rights of woman and man. These rights are liberty, property, security, and above all, resistance to oppression. Third, the source of all sovereignty resides in the nation, which is nothing but the union of woman and man. Fourth, the law should be the expression of the general will. All female and male citizens should have a say either personally or by their representatives. In its formulation, it should be the same for all. All female and male citizens are equally entitled to all honors and public employment according to their abilities and without any other distinction than that of their talents. No woman in an exception. She is accused, arrested and detained in cases determined by law. Women like men obey the rigorous law. ओलंपी डी गोगज ने बनाए गए कुछ बुनियादी अधिकार घोषणा। पहला, महिला स्वतंत्र पैदा होती है और अधिकारों में पुरुष के बराबर रहती है। सभी राजनीतिक संघों का लक्ष्य महिला और पुरुष के प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण है। ये अधिकार स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर उत्पीड़न का प्रतिरोध है। समस्त संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में है, जो कुछ भी नहीं है लेकिन स्त्री और पुरुष का मिलन। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होना चाहिए। सभी महिला और पुरुष नागरिकों को इसके निर्माण में व्यक्तिगत रूप से या उनके प्रतिनिधियों द्वारा अपनी बात रखनी चाहिए। यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला और पुरुष नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार सभी सम्मान और सार्वजनिक रोजगार के समान हकदार है और उनकी प्रतिभा के अलावा किसी अन्य भेद के बिना। कोई भी महिला अपवाद नहीं है। वह कानून द्वारा निर्धारित मामलों में आरोपी, गिरफ्तार और हिरासत में है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करती है। In the 1793, the Jacobin politician Chaumette sought to justify the closure of women's clubs on the following grounds. Has nature entrusted domestic duties to men? Has she given us breasts to nurture babies? No, she said to man.
Be a man. Hunting, agriculture, political duties, that is your kingdom. She said to woman, be a woman. The things of the household, the sweet duties of motherhood, those are your tasks. Shameless are those women who wish to become men. Have not duties been fairly distributed? 1793 में जैकोबिन राजनेता चौमेट ने निम्नलिखित आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने का औचित्य साबित करने की मांग की। क्या प्रकृति ने घरेलू कर्तव्यों को पुरुषों को सौंपा है? क्या उसने हमें बच्चों को पालने के लिए स्तन दिए हैं? नहीं, उसने आदमी से कहा, एक आदमी बनो। शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य, यह आपका राज्य है। उसने महिला से कहा, स्त्री बनो। घर की बातें, मातृत्व के मधुर कर्तव्य, ये तुम्हारे काम है। बेशर्म वो औरतें होती है जो मर्द बनना चाहती है। क्या कर्तव्यों का उचित वितरण नहीं किया गया है? यहाँ पे हमारा जो आपके इसमें जो स्रोत थे वो कंप्लीट हुए। इंग्लिश में आपके इसमें सोर्स दिए हुए हैं, वो सारे सोर्स हमने अभी पढ़े हैं। यहाँ पे हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।